الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم آمين. چلیے تو ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اسم اشارہ. تو اسم اشارہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ تو کون بتائے گا؟ آپ پڑھ چکے ہیں؟ سارے لوگ نہیں بولیے گا، ایک ایک لوگ بولیے، جتنا پڑھا چکے ہیں اس کو بولتے جائیے. باجی میں بولوں؟ ہوں اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ویری گڈ. نیکسٹ اب کوئی دوسرا بتائیے. مشارن الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. ویری گڈ. اور اس کی میں نے تھوڑا سا انگلش میں بھی ڈیفینیشن بتائی تھی، کون بتائے گا؟ اس میں اشارہ کیا ہے؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. A demonstrative pronoun is a word used to point to a person, place or thing. آپ کیوں کہہ سکتے ہیں اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے پڑھا تھا. اگزامپل میں کیا دیا ہوا ہے؟ جیسے ہاذ الولد میں ہاذا اس میں اشارہ ہے اور الولد مشار الیہ ہے. رائٹ. نیکسٹ بات آپ کو کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سے زائد الفاظ کے ایک مجموعے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو فہمیدہ حاجو آپ اپنا جو ہیڈ فون یا کچھ بھی لگائیں وہ نکال دیجئے، بہت ہی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو کیا بتایا آپ نے؟ کیا میں نے پوچھا آپ سے کہ مرکب کس سے کہتے ہیں؟ بتائیے، کلیئر آواز بتائیے جس کی ہو. اس میں ہم، پلورل کو کہتے ہیں مرکب. مرکب دو سے زائد الفاظ کو مرکب کہتے ہیں، دو سے زیادہ ہاں چیزوں کو. ہاں، دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اگر ایک ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ مفرد مفرد. مفرد مفرد. کہیں گے. مفرد ٹھیک ہے، مفرد کہیں گے. چلیے، اس میں اشارہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ دو دو قسمیں. قریب تو اور بعید. اس میں اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، قریب اور ہاں بعید. یس، قریب اور بعید پڑھے. تو قریب میں آپ نے پڑھا ہے ہاذا، ازال سے ہے یہ، ہاذا، ہاذانی، ہا الائی. اور مؤنث کا کیا ہے؟ ہاذی، ہاتانی، ہا الائی. تو جمع مذکر اور جمع مؤنث کا اس میں اشارہ سیم ہے یا الگ؟ سیم ہے. ویری گڈ. الگ. الگ. سیم ہے. الگ کہاں ہے؟ جمع جمع کا تو سیم ہے نا دونوں میں. جمع کا سیم ہے. دیکھیے، ہاؤلائی ہاؤلائی دونوں کا سیم ہے، مؤنث اور مذکر کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں اشارہ قریب وہ اسم ہے جس سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. تو آپ کے پاس جو چیز رکھی ہے جو آپ چھو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کون والا اشارہ لائیں گے؟ ہاذا قریب حاضر. والی. قریب. اس میں اشارہ قریب لائیں گے، ہاذا ہے نا، ہاذا والا لائیں گے. نیکسٹ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں اشارہ قریب کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. تو سیم ہے آپ کا
जो डुअल वाला है, तस्निया वाला है, उसका आपको भी लर्न रखना है। तो मुजक्कर के लिए हाजा, हाजानी, हाजैनी और हाउलाई। मुअन्नस हाज के लिए हाजिही, हातानी, हाजिही हातैनी, हातानी हाउलाई। हासैनी हाउलाई। ठीक है, तो ये मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ कुरान से मिसाल दी गई है। तो क्या बताया गया है, इन्ना हाजल कुराना। तो कुरान क्या है, मुजक्कर है, तो आप क्या ला रहे हैं, हाजा ला रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि मुशारुन इलैहि की रफ़त और शान के लिए कभी वो के बजाय ये तर्जुमा भी किया जाता है ना। तो यहाँ पे जी क्या तर्जुमा किया जा रहा है, ये हाजा का मीन्स क्या जी होता है, वो होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये किया गया। ये होता है। जल्दी से बताइए, हाजा का माना क्या होता है, ये होता है कि ये वो होता है। होता है। ये ये होता होता है। है। ये वेरी गुड, माशाल्लाह। हाजा मीन्स ये, और हाजानी मीन्स ये दोनों। ये दो। दो। ये तो ध्यान से सुनिए, हाजिर होकर सुनिए, ठीक है। ये कंफ्यूज करके कोई क्वेश्चन किया जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने वहां दूसरी चीज पढ़ी है, यहाँ क्या तर्जुमा किया जा रहा है आपका, इन्ना हादल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कुरान है, वो रास्ता बताता है जो सबसे सीधा है। तो हाजा मतलब ये, हाजा कुरान क्या है, मुजक्कर है, तो आप हाजा लेके आए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए तस्निया का यूज बताया जा रहा है, लसाहिरानी है और हाजानी है। तो जैसा इसमें इशारा होगा वैसा ही मुशारुन इलैह होगा। अगर इसमें इशारा वाहिद है तो मुशारुन इलैह भी वाहिद होगा। अगर इसमें इशारा तस्निया है तो मुशारुन इलैह कैसा होगा, तस्नीया होगा। तस्नीया ही होगा। तस्निया ही होगा। ठीक है। अगर इसमें इशारा मुअन्नस है तो फिर क्या लाएंगे आप, उसका मुशारुन इलैह। मुअन्नस ही लाएंगे। मुअन्नस ही रहेगा। हाँ। अगर मुशारुन इलैह मुअन्नस है तो इसमें इशारा कैसा लाएंगे, मुअन्नस लाएंगे। मुअन्नस। मुअन्नस लाएंगे। ठीक है, तो जैसा इसमें इशारा होगा वैसे ही मुशारुन इलैह होगा। तो इतना तो आप पहले ही पढ़ चुके थे। उसके बाद अब क्या है, देखिए इसमें इशारा बाईद है, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अच्छा बताइए, इसमें इशारा बाईद मुअन्नस और मुजक्कर का जमा का एक है कि अलग अलग है, एक है। एक है, उलाई एक का है। उलाई का दोनों। हाँ, तो जो आपका करीब में भी था तो वो भी जमा का सेम था, और बाईद का भी जमा का सेम है। सेम है। सेम है। सेम है कि अलग अलग है, सेम है। सेम है। सेम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नोट में नीचे क्या हुआ है, बाज मर्तबा इसमें इशारा बाईद जालिका का तर्जुमा मुशारुन इलैह की रफ़त शान की वजह से वो के बजाय ये से किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी वो के बजाय ये भी होगा। वो क्यों होगा, मुशारुन इलैह की रफ़त शान, उसकी अजमत, तो इसलिए आप वो के बजाय ये भी कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ठीक, तो यहाँ पे क्या तर्जुमा कर रहे हैं, वो के बजाय जालिका का मतलब ये क्या होता है, वो होता है ना, वो दैट के लिए आता है ना, जालिका दैट होता है ना, वो दूर की चीज के लिए हम जालिका यूज करते हैं। अगर आप अपने छत के फैन की तरफ इशारा करेंगी तो क्या कहेंगी, वो वो करेंगी ना। या आप अपने जो दूर विंडो लगी है तो क्या इशारा करेंगे, तो इसमें इशारा बाईद लाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करीब और बाईद। अब आगे आपको क्या बताया जा रहा है, म्यूट कर लीजिए, किसके साइड से आवाज आ रही है। यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं, तो ये कुरान की मिसालें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा, उससे पढ़िएगा कि कैसे ये यूज हो रहा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। उसके बाद
तस्निया का बताया जा रहा है आपका जानिका, फजानिका, बुरहानानी, ठीक है, मिन रब्बिका। उसके बाद तिलका बताया जा रहा है। दारुन आपको बताया गया था क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मोहनस मुअन्नस है। और बैतुन क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर है। तो देखिए यहाँ किसी ने क्वेश्चन भी किया था, तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, इसमें इशारा तिल का आया है। क्यों तिल का आया है? क्योंकि दार क्या है? मोनस। मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद उलाई का यूज आ गया। अब ये देखिए जो नीचे कवायद दिए हुए हैं, तो इन कवायद को आपको ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पर लिखिए मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस कवायद को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा इसी में। तो क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपके क्या है, मुशारुन इलई पर अगर अल हो तो जुमला क्या होगा, नामुकम्मल होता है। जैसे हाजल वलदू, इसका तर्जुमा आप क्या कर रही हैं, ये लड़का। तो नामुकम्मल क्यों कह रही हैं इसको, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इनकम्प्लीट है। ये लड़का तर्जुमा है, थोड़ी देर के बाद हम बोल दें कि ये लड़का, वो दाल उठा के उधर। प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं है। तो ये भी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ये लड़का है ना। तो ये क्या है, आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो कब इनकम्प्लीट होगा, जब मुशारु नीले पे क्या होगा, अल होगा, ठीक है। देखिए हाजा इसमें इशारा है, अल बलदू क्या है, मुशारु नीले है। तो मुशारु नीले पे अल लगा हुआ है ना, तो जब मुशारु नीले पर अल हो तो क्या होगा, ये इनकम्प्लीट होगा, नामुकम्मल जुमला होगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम भी पढ़ा था, बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। पूरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है इससे। तो इतनी बात सबको समझ में आई कि अगर मुशारु नीले पे अल लगा होगा तो क्या होगा, नामुकम्मल होगा। इनकम्प्लीट जुमला होगा। नामुकम्मल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा मुरक्कब हो जाएगा, नाकिस, नाकिस। क्योंकि पूरा माना नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, क्या बात बताई जा रही है। सेकंड पॉइंट क्या है, मुशारुन इले पर अगर अल ना हो तो जुमला मुकम्मल होता है। जैसे हाजा वलदुन, तो इसका तर्जुमा आप क्या कर रही हैं, ये लड़का है। तो अब इसको आप क्या कह रही हैं, कंप्लीट सेंटेंस कह रही हैं। क्यों कह रही हैं, ये लड़का है, मैंने बात कंप्लीट कर दी। अब थोड़ी देर के बाद ये लड़का, फिर अगर आपका ये है तो मैं कह दूं नहीं है। तो ऊपर वाले में ऐसा ही था, बट यहाँ क्या है, हमने कह दिया ये लड़का है। अब हम थोड़ी देर के बाद ये नहीं कह सकते कि ये लड़का नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, थर्ड पॉइंट, आम तौर पर इसमें इशारा जिन्स और अदद में मुशारुन इलय के मुताबिक होता है। तो ये आपको पहले से ही पता है कि जो जिन्स होता है, जेंडर होता है उसमें, और जो नंबर्स पढ़े आपने, दोनों में सिमिलर होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको फिर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हाजा वलदुन, हाजानी वलदानी, हाउलाई औलादुन, हादिही बिंतुन, हातानी बिनतानी, हाउलाई बनातुन। इसके तर्जुमे की जरूरत तो है नहीं, हाजा वलदुन, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, आप बताइए। ये लड़का है। ये ये लड़का है। लड़का है। ये वेरी लड़का गुड। है। अच्छा, आओ इसका तर्जुमा कीजिए। ये दो दो लड़के हैं। ये दो लड़की हैं। लड़के हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले का सारे तर्जुमे करिए। ये वो सब 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 लड़के। लड़के हैं। लड़के, सब लड़के हैं। हम्म औलाद। सब लड़के। हम्म नीचे वाला करिए, ये हाजिही। ये लड़की ये है। लड़की है। तानी, ये हाँ, दो ये दो लड़के हैं। दो लड़की लड़के हैं। ये दो ये लड़की है। सब लड़कियां हैं। ये ये सब सब लड़कियां लड़कियां हैं। हैं। ये सब लड़कियां हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो सबको समझ में आ गए ये कवायद, स्क्रीनशॉट लीजिए।
जीवाणु। चलिए, तो जब मुशारुन इले पे अल होगा तो जुमला कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट हाँ, होगा। उसमें है नहीं लगाएंगे। जैसे हाजल वलदू तो आप क्या कहेंगे? ये लड़का। ये और लड़का। जब आप कहेंगे हाजा रजुलुन तो आप क्या तर्जुमा करेंगे? ये आदमी है। आदमी है। कंप्लीट तर्जुमा करेंगे। कंप्लीट तर्जुमा करेंगे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। चलिए, अब नेक्स्ट बात आपको क्या बताई जा रही है? अगर मुशारुन इलय मुज़क्कर की जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस या जमा इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर की जमा मुकस्सर हो, ठीक है, सालिम नहीं, मुकस्सर की बात बताई जा रही है। अगर मुशारुन इलय मुज़क्कर की जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस या जमा इस्तेमाल होता है। मतलब वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है और या जमा इस्तेमाल होता है। तो देखिए, वाहिद मुअन्नस भी और जमा भी, तो दोनों एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तिलकर रसूलु है, दिख रहा है? तो रसूल की जमा क्या है? रसूल। तो इसमें इशारा पारे का नेम है, आप लोग पढ़ते हैं कुरान में। जी। तीसरा तिलकर पारा। रसूल, तीसरा पारा। थर्ड पारा। दूसरा पारा। तीसरा पारा है। तो तिलकर रसूल है ना, तो ये रसूल की जमा है रसूल। तो यहाँ पे इसमें इशारा कैसा लाया गया है? वाहिद मौन। मोहन्नस का। और दूसरा देखिए क्या है? हिजबुन की जमा है अहजाब, जमातें, ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इशारा कैसा लाया गया है? जमा लाया गया है। जमा। तो आपको ऊपर डिफिनेशन क्या दी हुई है? अगर मुशारुन इलय मुजक्कर की जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस या जमा इस्तेमाल होता है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब नेक्स्ट बात आपको क्या बताई जा रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको जरूरत है। हा उलाई और उलाई का आम तौर पर ये आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? आकिल। अब आकिल, व्हाट इज आकिल? तो आकिल से मुराद इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, शयातीन हैं। तो आकिल कौन कौन है? इंसान है, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं और शयातीन। इनके अलावा सब गैर आकिल होते हैं। सारी चीजें नॉन लिविंग होती हैं। तो अरबी में आपने कितने को लिविंग थिंग कहा है? इंसान, फरिश्ते, जिन्नात और शयातीन। तो ये सिर्फ आकिल है, बाकी सब क्या है? गैर आकिल है। चलिए, तो क्या बताया गया है? आम तौर पर ये हा उलाई और उलाई का किसके लिए इस्तेमाल होता है? आकिल के लिए। आकिल, इंसान, जिन, फरिश्ते और शयातीन। अब उसके बाद क्या बताया गया है? हा उलाई उलाई कन नासू, ये सब और वो सब लोग। ठीक, तो यहाँ पे ये सब क्या है? आकिल हैं। तो क्या यूज कर रहे हैं आप? हा उलाई और उलाई का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात आपको क्या बताई जा रही है? हाज़िही और तिलका। हाज़िही, तिलका, ये मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए? मोहन्नस के लिए। मोहन्नस के लिए। मोहन्नस के लिए। हाँ, मोहन्नस मुअन्नस के के लिए। लिए। हाँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? आम तौर पर गैर आकिल की जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हाज़िही और तिलका यानी मुअन्नस वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैर अकील की गैर, गैर जमा के आकिल लिए। के लिए। गैर आकिल के लिए। नहीं, गैर आकिल की जमा के लिए। ठीक है, गैर आकिल की जमा। के लिए आम तौर पर। ठीक है, आम तौर पर ज्यादातर जो यूज होते हैं वो यही यूज है। अब अगला देखिए, आपको क्या बताया जा रहा है? हाज़िही और तिलका। तो हाज़िही करासीयू, कुर्सियुन, कुर्सी यानी करासीयू, ये जो चेयर्स होती हैं, ये सब या वो सब कुर्सियां।
ठीक है। अब अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, हादिहिल अनआमु। अनाम मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? चौपाए, चौपाए हाँ, जानदार। जानवर। तो ये सब चौपाए हैं या ये सब जानवर हैं। तो यहाँ पे आप अनआम क्या है, जमा है, इसमें इशारा क्या ला रहे हैं, वाहिद मुअन्नस। तो गैर आकिल की जमा है, इसलिए आप इसमें इशारा कौन सा यूज कर रहे हैं, मोहन्नस का। वाहिद मुअन्नस। गैर आकिल की जमा, तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका तिलकल अय्यामु, वो दिन। तो अय्यामुन जमा है या वाहिद है? जमा। जमा है। तो वाहिद क्या होगा? यौम। वेरी यौम। गुड। तिलकल अय्यामु, वो दिन। तो अय्याम जमा है, इसमें इशारा क्या ला रही हैं आप, वाहिद मोहन्नस। ठीक है। तो समझ में आया कि गैर आकिल की जमा जहां होगी तो इसमें इशारा क्या यूज करेंगी आप, वाहिद मुअन्नस। वाहिद। की जमा मुअन्नस यूज करेंगी। वाहिद मोहन्नस। वाहिद मोहन्नस। मोहन्नस। ठीक है। चलिए अब नीचे आपका लिखा हुआ है कि आकिल से मुराद इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, शयातीन हैं, इनके अलावा सब गैर आकिल हैं। ठीक है। अब अगली बात क्या बताई जा रही है आपको, क्वेश्चन आंसर है। इसमें इशारा किसे कहते हैं, मिसालों के साथ लिखिए। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है इसको क्या कहते हैं? मुशारुल हाँ, इलैह। तो इसकी 3 मिसालें दीजिए। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपनी बुक से देख के। और थर्ड वन क्या है, मुशारुल इलैह पर अल के होने या ना होने से माने में क्या फर्क पड़ता है? तो अभी आपने सुना कि अल के होने से क्या फर्क पड़ता है। तर्जुमा नहीं है तो हमने कंप्लीट से होता है। सेंटेंस कंप्लीट होता है। हाँ, तो अल के होने से कितना बड़ा फर्क आ जाता है। अगर अल लगा है तो सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट। कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अगर अल नहीं है तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इशारा करीब, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप अपना लिख लीजिएगा, आपको लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें इशारा बाईद, मुजक्कर, मुअन्नस के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? ये भी आपको लर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकिल के लिए कौन से अस्माई इशारा इस्तेमाल होते हैं? ये भी आपको पता है, आकिल और गैर आकिल भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर आकिल की जमा के लिए कौन सा अस्माई इशारा इस्तेमाल होता है? ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल आयात में अस्माई इशारा और मुशारुल इलैह की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ भी ये भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत स्लो आपने पढ़ा है और सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लियर है। और एक चीज और है, आपका पेपर बन गया है, इंशाल्लाह सैटरडे को मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर भी आपको शेयर किया है। तो और उसका टाइम बहुत थोड़ा सा रहेगा, ताकि आप कहीं देख ना सकिए बुक में, और क्विज आपको अटेंड करना होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप में से जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो आप होमवर्क ग्रुप में ऐड नहीं है तो आपको पेपर ना मिल पाए। आप पेपर जरूर अटेंड करिएगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इसमें इशारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई चीज नहीं बची आपको बताने की। अब आप आ जाइए, कल आपने क्या ये कल आपने जो पढ़ा था माजी करीब, उसकी तसरीफ आपको कल सुनाना होगा। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसम फेल हर्फ लर्न कर रहे हैं, तो इस फेल हर्फ अपने से कर लीजिएगा। कौन सा आपका हर्फ चल रहा था, हर्फ कौन सा चल रहा था, आपने कौन से हर्फ लर्न किए हैं? बातें शायद जाजिमा। नहीं, अदवाते इस्तेफामिया। नहीं, अदवात इस्तिफाम तो अभी नहीं